Okay, students. So right now with me, Vidyesh Bondre, and we are going to start his mock snap interview for mathematics. Yes, So, sir. Vidyesh, first of all, you just tell your BTech branch, your GATE score, and the institute from where you have got interview call. My name is Videsh Bondre. I have done Bachelor's in Electronics and Telecommunication Engineering from Chanankar Kutch Engineering College, which is in Mumbai under University of Mumbai. Uh, my GATE score is 620 in EC, and I have got a call from IIT Billai for Electrical Engineering MTech. Okay, Vidyesh. So now let us start with mathematics. Vidyesh, Yes, first sir. of all, note down fx equal to x mod x. Sorry, 2 mod नहीं नहीं x multiplied by mod x multiplied by mod x plus 1. plus 1. Yeah. So draw the graph of this function. Yes, sir. So this one bottom. Okay. Hello, sir. Yeah. Your video froze. नहीं ठीक है दिख रहा है. Yeah. Okay. Now with this you tell me what is Stokes theorem? So you want the formula of the statement? Both. So, the Stokes theorem allows us to calculate a closed integral, uh, a closed line integral by by substituting it with its area, surface area. Sir, I know the formula. I'm not very familiar with the statement. So formula याद करके कैसे काम चलेगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपको थ्योरम का. Yes, sir. I'm sorry. Okay. मोड x मोड y का प्रोडक्ट है Mod x mod y इक्वल टू 1. equal to 1. ड्रॉ करो इसको जरा. Okay. और x और y नॉट इक्वल टू 0, कोई सा भी 0 नहीं है. ठीक है. Sorry, वापस बोलिए सर. x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0. Okay. So I think it should be like this. Sorry, sir. Can you see it? Sir, 1 second. I lost your voice. एक मैट्रिक्स नोट करो. फर्स्ट रो इज -5 9. -5 9. Second row is 8 -4. 8 -4. Yeah. First of all, tell me what are the eigenvalues of this matrix. Okay, sir. Sir, 4 and -13. 4 and -13. Yes, sir. Okay. क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है? Yes, sir. How Sir, you can say it?
Sir, because the eigenvalues are distinct, then the eigenvectors will be linearly independent. Okay. Therefore, the matrix will be diagonalizable. Okay. And suppose in a matrix, suppose we have a 4 by 4 matrix. Okay, sir. And in that some eigenvalues are repeated. Say 5, 5, 2, 3. These are the eigenvalues 5, of 2, 3 will be some particular matrix. Okay. 5, okay, 5, sir. 2, 3. So there are three options. This matrix is not diagonalizable. This matrix is diagonalizable. This matrix may or may not be diagonalizable. So which option will you take? Sir, I am going to go with option A. It is not diagonalizable. Okay. एक मैट्रिक्स लिखो 3, 4, 5, 7. सर 2 into 2 मैट्रिक्स है ना? हाँ. और अपने पहला रो 3, 4, सेकंड रो 5, 7. हाँ. हाँ. इसको दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो, LU डिकम्पोजिशन करो, जिसमें फर्स्ट लोअर ट्रायंगुलर एंड सेकंड अपर ट्रायंगुलर हो. First upper triangular, lower triangular. Okay, sir. फर्स्ट लोअर ट्रायंगुलर, सेकंड अपर ट्रायंगुलर. LU इस प्रोडक्ट में लिखना है LU. ठीक है. Okay, sir. Just 1 second. No, sir, I don't know how to solve this. No idea. Okay. एक डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करो. Yes, sir. dx upon dt dx upon dt plus 2tx 2tx equal to e to the power minus t square. sorry, equal to e की पावर में minus t square. e के पावर में minus t square. Okay, sir. Try to solve this differential equation. Sir, x is equal to t plus constant c, the whole multiplied by e raised to minus t square. E raised to the power minus t square. Yes, sir. Sure. Yes, sir. That's what I got. E की पावर में minus t square, right? Sir, equation dx by dt plus 2tx equal to e raised to minus t square. ये था ना? हाँ. हाँ, मुझे ये आया सर. तो अभी भी आपका e की पावर minus t square आ रहा है ना प्रोडक्ट में? हाँ सर. t plus c के प्रोडक्ट में. t plus c के प्रोडक्ट में. हाँ सर. ठीक है. cos square 2t. Sorry? cos square 2t. इसका फंडामेंटल पीरियड बताओ. cos square 2t. ये 2t. हाँ, नहीं था. अभी क्लियर किया था पावर का फंडामेंटल पीरियड है सर.
2t sir pi by 4 sir, pi by 4 Okay. Pi by 4. yes sir Sure. sir I can cross check again no sir pi by 2 sorry Okay. साइन स्क्वायर टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ क्या होगा? साइन स्क्वायर टी sin square t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लैप्लास sin square t just 1 second yes sir 2 upon s into s square plus 4 वो अपॉन s into s square plus 4 ओके ये इनटू में रहेगा प्लस में रहेगा सर s square plus 4 ब्रैकेट में है और the whole into s अच्छा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ minus x square सर अच्छा इसको अगर हम इसमें +4 ऐड कर दें क्या चेंज आएगा इसमें? पूरा ग्राफ +4 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा अच्छा अभी जो ओरिजिन पे आ रहा है वो 0 + 4 पे आएगा ठीक है कर लो इसको शिफ्ट ऊपर कर लिया मान लिया आपने ये तो क्या ये कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी रैंडम वेरिएबल के जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है कोई क्या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व no sir I can't tell नो आइडिया no idea sir. ओके अच्छा ये बताइए रैंडम वेरिएबल क्या होता है रैंडम वेरिएबल सुना है yes sir बताइए I'm sorry आइडिया so I'm having trouble with defining it डिफाइन नहीं कर सकते हो अच्छा ये बताइए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है कुछ Gaussian हाँ हम्म yes sir, Gaussian distribution
गॉसियन नहीं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ पॉइसन भी पता है सर। पॉइसन और गॉसियन सेम थिंग है, अलग अलग है? अलग अलग है बाइनोमियल और पॉइसन सेम थिंग है, डिफरेंट है? सर, सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है मतलब। ओके, क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? सर बेसिकली जब बाइनोमियल में या तो सब फेल या पास होता है। बाइनोमियल को अलग कर दो, खाली अच्छा। पॉइसन बताओ, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेवन सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, नहीं नंबर ऑफ सॉरी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत लो होगा या फिर हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा होगा, तभी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है। एक एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यस सर। वेयर एक्स इज बिटवीन -1 and 3, ठीक है? -1 and 3, यस सर। ये एक पीडीएफ है ओके। किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का। एक्स जब -1 से 3 के बीच में है, तो हाँ। इसमें एफ एक्स के एक्स स्क्वायर है और 0 एल्सवेयर, बाकी सब जगह 0 है। ओके। ये किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है, ठीक है? ओके सर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज बिटवीन 0 and 1? ये बताओ। यस सर, 1 सेकंड। सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बोला ना आपने? के एक्स स्क्वायर, के x स्क्वायर, यस सर, हाँ दैट मेक मोर सेंस। -1 and 3। Zero and 1 ना? No, I'm calculating, sorry. So 1/28। 1/28, ओके। अब आप मुझे बताइए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या डिफरेंस होता है? लीनियर इक्वेशन में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, आपको लास्ट वर्ड। डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा ओके सर। so consider two events A and B. If the probability of success of A is not dependent on success of B, then the two events are called independent. So basically it doesn't matter whether B is a success or not, probability of A remains the same. ओके, मैथमेटिकली हम कैसे चेक करते हैं कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? Yes sir. Independent. The probability of A intersection B is equal to product of probability of A and probability of B. If this equation is true, then we can say that the events are independent. Okay. Okay, Vinesh, your interview is over now, and let me give you the feedback. Yes sir, please. तो देखो, ग्राफ में तो कुछ कमांड है आपकी ठीक, कैलकुलेशन में ठीक है, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इशू है। तो जो भी आपके माइंड में, उसको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उसमें एक्सप्रेस करने की ट्राई करो। ओके सर। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपने सही ड्रॉ कर दिया ग्राफ, स्टॉक आप नहीं बता पाए,
तो ये ईएमटी तो आपने पढ़ा होगा ना, ईएमटी में जो थ्योरम्स यूज होती है वो तो आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। यस सर। स्टोक्स थ्योरम क्या है? स्टोक्स थ्योरम से रिलेट ए लाइन इंटीग्रल टू ए सरफेस इंटीग्रल, पहला स्टेटमेंट तो ये देना है। यस सर। फर्दर इसमें क्या ऐड करना है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ around a closed curve C in the three-dimensional space is equal to the surface integral of curl of F over an open surface S, which surface is generated by the closed curve C. Yes, I have this definition written. I just don't recall it. Yes. तो बच्चा अपना definition सर। याद करो, सोचो, दिमाग में सोचो, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ यस सर। पूरी इक्वेशन को दिमाग में सोच के उन वर्ड्स को कनेक्ट करो और बोलो। यस सर। ठीक है, तो थ्योरम सारी एक बार रिवाइज करो। यस सर। स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है, यस सर। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम, ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। यस सर। इनको एक बार रिकॉल कर लो सबको। और रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये सारे थ्योरम्स रिकॉल करो एक बार। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ आपने दूसरा भी ठीक बनाया, मोड एक्स मोड वाई इक्वल टू 1, करेक्ट है आपका ये। आइगन वैल्यूज आपने कंप्यूट कर दी। लेकिन आप जो डायगोनलाइजेशन वाला कंसेप्ट है वो आधा अधूरा है आपका, मतलब आपको कुछ पॉइंट याद है बट क्लियरिटी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको आइगन वैल्यूज दिया 5 5 2 3। यस सर। तो देखो, अगर कुछ आइगन वैल्यू रिपीट करती है ना, हाँ, तो हमें 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पॉसिबिलिटी है, मिल सकते हैं। किसी आइगन वैल्यू की जीएम 1 से बड़ी भी तो हो सकती है जो रिपीट करती है। तो अच्छा, ओके, हाँ, यस सर। तो मेन जो क्राइटेरिया होता है डायगोनलाइजेशन के लिए मैट्रिक्स के, वो आइगन वैल्यूज का डिस्टिंक्ट होना मेन क्राइटेरिया नहीं है। मेन क्राइटेरिया है कि n by n मैट्रिक्स है, इट मस्ट हैव n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ओके। तो अगर आइगन वैल्यू रिपीट भी कर रही हैं और उसके बावजूद अगर टोटल 4 आइगन वेक्टर बन गए लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पे, तब तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। यस सर, यस सर, आपको करना था वहां पे कि मे और मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल। ये डिपेंड करेगा जीएम्स क्या आएंगी उनकी, मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सर। ठीक है, देन ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर लिया आपने। हाँ। बट यहाँ पे e की पावर माइनस टी स्क्वायर लिख रहे हो आप, जब दूसरी साइड में लेके जाओगे तो प्लस में नहीं होगा वो। सर इंटीग्रेशन फैक्टर, अच्छा हाँ, e रेज़ टू माइनस टी स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ। सर कैसे? अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, यस सर। नहीं यस सर। एक मिनट, मुझे चेक करना तो कंफर्म कर लेते हैं एक बार। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, कितना आया? e रेज़ टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? x डॉट e रेज़ टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस टी स्क्वायर डॉट e। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है ये आपका। हाँ ठीक है, हाँ ओके। यस सर। फंडामेंटल पीरियड पहले आपने पाया को गलत बताया, बाद में करेक्ट कर लिया। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकाला sin स्क्वायर t का, तो इसको 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 करके लिख सकते हैं। हाँ यस सर। तो 1/2 इंटू 1 अपॉन s माइनस कितना हो जाएगा ये cos 2t है ना, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये भी आपका ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने पूछा था आपसे कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 4 कर दिया, क्या ये नॉर्मल कर्व होगा? तो नहीं, ये नॉर्मल कर्व नहीं होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। तो नॉर्मल कर्व में क्या होता है कि कनकेविटी चेंज होती है। ओके। साथ में कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं, उसके अंडर में टोटल एरिया 1 होना चाहिए। यस सर। उसका सारा सेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा एफ एक्स। यस सर। और वहां पे कनकेव पहले अप रहता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। तो ये कर्व तो मैच नहीं करेगा उससे, सो इसको नॉर्मल कर्व नहीं बोलेंगे। ठीक है सर। यस सर। रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हाँ, तो रैंडम वेरिएबल को एक बार रिवाइज करो, क्या होता है रैंडम वेरिएबल। ओके, अभी के लिए मैं बता देता हूं, याद कर लो। आपको क्या बोलना है कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है।
Okay. Random variable is a function या rule या mapping which assigns a unique real number to every sample point of a sample space. आप सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हो कि सर एक फंक्शन की तरह काम करता है जिसमें इनपुट में सैंपल पॉइंट्स होते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के, और आउटपुट में रियल नंबर्स होते हैं जो वो फंक्शन उन सैंपल पॉइंट को असाइन करता है. ओके सर. ये हमारा मेन डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल का. ओके सर. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने नहीं बताया. तो गलत था. बहुत सारे बच्चों का ये बार बार रॉन्ग वो रहता है मिसकंसेप्शन कि वो बाइनोमियल से रिलेट करते हैं इसको. बाइनोमियल अलग है, पॉइजन अलग है. बाइनोमियल में पार्टिकुलर केस में आंसर पॉइजन से मैच करता है. बस वो कब करता है? जब n बहुत ही हमारा लार्ज हो और p बहुत ही स्मॉल हो या q बहुत ही स्मॉल हो, तो उस केस में वो मैच करता है, आंसर लगभग बराबर आते हैं, बट उसके मेथड सेम नहीं हो जाते, दोनों के कंसेप्ट सेम नहीं हो जाते. ओके. पॉइजन एक डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल एक डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके सर. ठीक है, तो इनको Yes, sir. डिटेल में पढ़ो. ओके. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ सकते हैं. यस सर. ठीक है. पीडीएफ, सीडीएफ, इनके बारे में डिटेल में पढ़ो. यस पीडीएफ सर. से सीडीएफ ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, सीडीएफ से पीडीएफ ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं इंटरव्यू में. ओके. पूरे सेक्शन को कवर करो. ठीक है. यस सर. और वेक्टर स्पेसेस जो मैंने पढ़ाया था लेक्चर में पैनल पे, उसको एक बार रिवाइज कर लो, वो क्वेश्चन बन सकता है. ये प्रोबेबिलिटी आपने सही निकाला 1/28, और डिपेंडेंट डिपेंडेंट का भी आपने आंसर सही दे दिया. तो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस ठीक है. एक क्वेश्चन तो आपने नहीं किया, एलयू डिकम्पोजिशन. हाँ. यस सर. तो अभी जाके घर पे बैठ के इसको सीख लो एक बार. यस सर. अभी देखता हूं. डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एलयू डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं वो. यस सर. मैं देखता हूं अभी. कॉमन सेंस से भी कर सकते थे इसको अभी हम यहाँ पे. हाँ. ठीक है. ओके सर. बट आप पूरा प्रोसीजर समझ लो घर पे जाके इसका. यस सर. यस सर. ऑल द बेस्ट विजेश. या थैंक यू वेरी मच सर.